and I a grace to understand these things. काश खुदावन आपको और मुझे अनुग्रह दे कि हम इन बातों को समझ पाएं. We are reading and he's saying that's where I'm going to show you who Satan is. और वे बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि शैतान कौन है, What he did, क्या उसने किया, where he come from, कहां से वो आया, what's his purpose, उसका उद्देश्य क्या है, and how that his great beauty that was given him caused his fall. और कैसे वो बड़ी सुंदरता जो उसे दी गई उसी ने उसको गिराया है, His उसका deceit कारण caused बना. it to fall, beauty, और वो his deceit. उसका जो धोखा है, उसका भ्रम जो What was है, the deceit? वो उसका भ्रम क्या था, His beauty. उसकी खूबसूरती. That beauty was deceitful. जो उसकी खूबसूरती थी वो धोखेबाज थी, It भ्रम caused करने. it to fall. उसी ने उसको गिराने में विवश किया And it still does. और ऐसा ही करती है आज भी. You know the message. आप संदेश जानते हैं. Now, before we come to future home, इससे पहले हम भविष्य घर में आए, we have to understand Revelations 12. हमें समझना जरूरी है प्रकाश वाक्य 12वें अध्याय को, Because he said, I'm going to tie this with that. क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसको उससे जोड़ूंगा. Now listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए. Revelations 12. प्रकाश वाक्य 12वां अध्याय. And that is what we are going to speak for tonight. और इसी पे हम बोलेंगे आज रात्रि. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था. And she being with child cried, travailing in birth and pained to be delivered. और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and it cast them to the earth, and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया. वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए. And now you have heard already in the message what Brother Branham has said for that. Amen. अब आपने पहले से संदेश में सुना है भाई ब्रैनम ने इसके विषय में क्या कहा है. Now, but I want to show you something. पर अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. Let us not just read a few quotes and draw a conclusion. ऐसा ना हो कि हम कुछ ही कोट को पढ़ें और उससे एक निष्कर्ष निकाल लें, But let us read everything what he said, परंतु ऐसा हो कि आइए हम वो सब कुछ पढ़ें जो उन्होंने कहा है, which he said regarding this, जो कि उन्होंने इसके विषय में बोला है. and then maybe our viewpoint changes. और ऐसा हो सकता है कि हमारा दृष्टिकोण बदले. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं वे समझ रहे हैं. Very clearly in 1964 question and answers, बड़े स्पष्ट रीति से 1964 प्रश्नोत्तर में Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा this woman is Israel. ये स्त्री इज़राइल है. You know it. आप जानते हैं इसे. And she was bringing a man child. और वो एक नर बच्चे को ला रही थी. It's the Orthodox Jewish church ये ऑर्थोडॉक्स यहूदी कलीसिया है which was bringing this man child. जो कि इस नर बच्चे को ला रही है. You know that was Christ. आप जानते हैं वो मसीह है. And while she was pained to deliver that child, और जब वो जच्चा की पीड़ा में थी कि वो उस बच्चे को जने, now in order to understand those pains, अब उन दर्दों को समझने के लिए you have to read another message. आपको एक और संदेश पढ़ना पड़ेगा, Birth pains. प्रसव की पीड़ा. And in that message he said, और उस संदेश में उन्होंने कहा every prophet when it came in Israel हर एक नबी जब वो इज़राइल में आया was a birth pain for that nation. वो एक प्रसव की पीड़ा थी उस राष्ट्र के लिए. Jeremiah was a pain. यर्मिया एक दर्द था. Elijah was a pain. एलिया एक जच्चा की पीड़ा थी. Hosea is a pain. होशे एक जच्चा की पीड़ा थी. Malachi is a pain. और मलाकी भी जच्चा की पीड़ा है. Then came a last big pain. फिर आखिरी बड़ा दर्द आया. The forerunner, वो पेशरो John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, He came and he shook the nation. वो और उसने पूरे राष्ट्र को हिला दिया. There was a spiritual disturbance. एक आत्मिक उथल पुथल हो गई. But what happened next? पर अगली चीज क्या हुई? The
one who gave me the sign. वो जिसने मुझे चिन्ह दिया था, He said, upon whom you see the sign of the dove. उसने कहा जिसके ऊपर तुम फाख्ता को आते हुए देखो उसका He is चिन्ह the one who will give the baptism of the Holy Ghost. वही है जो तुम्हें पवित्र आत्मा स्मा देगा। And next person that came, अगला शख्स जो आया, the Son of Man himself, मनुष्य का पुत्र स्वयं, God in human flesh. खुदावन इंसानी शरीर में। Is that right? क्या बात ठीक है? Now listen. अब सुनिए, When this woman was pained to deliver that man child, जब ये स्त्री जच्चा की पीड़ाओं में थी कि उस नर बच्चे को जन्म दे, this woman is not Mary alone. ये स्त्री मरियम अकेली नहीं है, This woman is a church ये स्त्री एक कलीसिया है from which a man child is coming. जिसमें से एक नर बालक आ रहा है। In that time it's Christ. उस समय तो वो मसीह है, It's always Christ. हमेशा से मसीह ही है। But you know what happened at his birth? पर आप जानते हो उसकी पैदाइश में क्या हुआ? Herod wanted to kill him. हेरोदेस उसे मारना चाहता था। And Brother Branham said, और भाई ब्रैनम ने कहा that red dragon, that's Rome, वो लाल अजगर जो रोम है, was walking through Herod वो हेरोदेस में होके काम कर रहा था to take the life of that child. ताकि इस बच्चे के जीवन को खींच ले। But you know, he couldn't kill him. पर आप जानते हैं वो उसे मार नहीं पाया। He couldn't even kill him at the cross. वो यहाँ तक कि उसे क्रूस पे भी नहीं मार पाया। Some people think, but finally killed him. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, पर आखिर मार तो दिया, Killed him at the cross. क्रूस पे मारा। No, he couldn't touch his life. नहीं, वो उसके जीवन को छू नहीं सकता। Before they could come to him, इससे पहले वो उसके पास आते, he had already left. वो पहले से अपने शरीर को छोड़ के जा चुका था। I have power to lay my life down, मेरे पास अधिकार है अपने जीवन को देने का, and I have power to take it back again. और मेरे पास अधिकार है कि अपने जीवन को वापस ले लूं। You know how they killed at the cross? आप जानते हैं कैसे वो क्रूस पे मारते थे? When that man used to go like that, जब आदमी जो है ऐसे गिरता था, what was the mode of death at the cross? किस तरीके से मारा जाता था क्रूस पे? By suffocation. गला घोट के, No. Dum ghutke. दम घुट के। That's right. How? कैसे? After hanging for so many hours, लंबे समय से लटकने के बाद the cause of death was not bleeding. जो मरने का जो कारण था वो खून के बहने से नहीं था। Why was cross considered a horrible death? क्रूस को सबसे ज्यादा बुरी मृत्यु क्यों कहा जाता था? It was not bleeding that killed a man. ये लहू के बहने से नहीं आदमी मरता था। Of course, a man used to bleed. हाँ, बेशक एक आदमी का लहू जरूर बहता था, But you know, to stay in this position, पर आप जानते हैं इस स्थिति में रहने से it was not possible. ये संभव नहीं था। So he used to sag down. तो वो नीचे झुकने लगता था, And when he used to sag down, और जब वो नीचे ढिलकने लगता the था, diaphragm pushed the lungs up जो डायफ्राम है वो फेफड़ों पे दबाव डालता था, and he couldn't breathe. और फिर उसको सांस लेने में मुश्किल होती थी। Is that right? क्या बात ठीक है? After so many hours, इतने लंबे घंटों के बाद when the Romans saw that now he's just at the point of death, जब रोमियो ने देखा कि अब वो बस मरने की कगार पे है, they used to break the legs. वो टांगों को तोड़ देते थे। The reason they used to break the legs, जिस कारण से वो टांगों को तोड़ते थे वो ये था that when he sags down, कि जब वो नीचे ढिलक के नीचे आएगा, now because the bones are broken, अब क्योंकि उसकी हड्डियां टूट गई हैं, he cannot get up. वो अब ऊपर उठ नहीं सकता, And now he will suffocate to his death. और अब वो उसका दम घुट घुट के वो मर जाएगा। And that's how the two thieves died. और इस तरीके से वो दो चोर मरे। But when they came to Jesus Christ और जब वो आए प्रभु यीशु मसीह के पास to break his bones, ताकि उसकी हड्डियों को तोड़ते, he had already वो died. पहले से मर चुके थे। आमीन। Rome did not kill him. रोम उन्हें नहीं मार पाया। No man could touch that life कोई आदमी उस जीवन को छू नहीं सकता। before anybody could touch him. इससे पहले कोई उन्हें छुए, He had already gone. वो पहले से जा चुके थे। He cried with a loud voice, वो बड़े जोर के शब्द से चिल्लाए, "It is finished." ये पूरा हुआ। Father, पिता, into the hands आपकी ये हाथों में I commend my spirit. मैं अपने आत्मा को सुपुर्द करता हूँ। And when he cried with that loud voice, और जब वो बड़े जोर के शब्द से the चिल्लाए, Bible says he gave up the ghost. बाइबल ये कहती है उन्होंने प्राण त्याग दिए। He gave up the ghost. उन्होंने प्राणों को त्यागा। He just left his life. वो ठीक उन्होंने इस जीवन को छोड़ दिया। He decided the time to leave his body. उन्होंने वो समय नियुक्त किया था कि कब वो अपनी देह को छोड़ेंगे। The Father had allowed him पिता ने उन्हें यह अनुमति दी थी to step out of that कि body उस देह से बाहर कदम मारे, into his theophany. अपनी
अवनी में प्रवेश करे, to preach to the souls in prison. ताकि वे प्राण जो कैद में थे उनको प्रचार करे। Rome could never touch him. रोम उन्हें कभी नहीं छू पाया। Rome could never touch that man child. रोम कभी भी उस नरबालक को छू नहीं पाया, Even at the cross. यहाँ तक कि क्रूस पे भी। And on the day he rose again. और उस दिन वो जी उठे फिर से। Third day, brother, I said. तीसरे दिन वो जी उठे। And Rome didn't know anything. और फिर रोम को कुछ पता नहीं था। And on the 40th day, और 40वें दिन the man child was caught up to heaven. वो नर बालक जो है वो स्वर्ग में उठा लिया गया, Into the thrones of God. खुदा के सिंहासन में। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे। You catch it? आपको समझ में आ रहा That है? happened in the first coming. Sit down, ये please. हुआ पहली आमद में। बैठे कृपया। That woman brought forth a man child. वो जो स्त्री है वो नर बालक को लेके आई। That's right. ये बात ठीक है। And that man child was caught up to heaven. और वो नर बालक उठा लिया गया स्वर्ग तक। Now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए। Read from verse 3, brother. तीसरे आयत से पढ़िए भाई। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। Yeah. और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। Yes. उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। Yeah. वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। आपको मालूम, जैसे मैंने कहा, ये विषय ऐसा विषय नहीं जिसको कि आप आम तरीके से यूं ले लो, समझ लो। नहीं। क्या आपको ये आभास है इस एक आयत को कि अजगर ने अपनी पूंछ से कितना तिहाई, और नबी ने इसको जोड़ के 2/3 बोला, मेजॉरिटी। और तब नबी ने बताया ये टेल, TAIL टेल नहीं थी, ये TALE टेल, एक कहानी, भरमाने वाली कहानी जो उसने सुनाई। क्या आपको मालूम, अजगर ने 2/3 को जो सितारे थे अपनी दुम से, दुम नहीं कहेंगे आप इसको, हिंदी में दुम है क्योंकि इंग्लिश में भी टेल है, लेकिन वही इंस्पायर्ड रीडिंग फर्क होती है। नबी ने कहा टेल, जो उसने बोली, कहानी, गॉड ब्लेस यू, जो बोली, जिससे 2/3 दूत गिरा दिए गए, सितारे गिरा दिए गए। सितारे दूत हैं। क्या आपको मालूम, नबी ने इसे जोड़ा जगत की उत्पत्ति के समय, जब उस समय यह अजगर गिराया गया, जब स्वर्ग में लड़ाई हुई, और वहां इसने एक झूठ बोला था भाई ब्रानम ने, आपने पढ़ा है मैसेज में, वहां इसने एक झूठ बोला और कई सितारे अपनी तरफ कर लिए, और तब एक युद्ध हुआ और यह गिराया गया। क्या यह सच्चाई है? क्या आपको अजीब नहीं लगेगा? हिब्रूज के मैसेज के सवाल जवाब में नबी पता क्या कहते हैं? इस लाल अजगर ने जब ये दुम से, टेल यानी कहानी से 2/3 सितारे गिरा दिए, और तब उन्होंने कहा ये मालूम कौन थे? बोलता ये क्रूस के दिन इस अजगर ने उन यहूदियों को भरमा लिया था। ये थे वो सितारे जो गिराए गए, जिन्होंने उसे सूली पे चढ़ाया। बताओ भाई, वाह यार, हमने 2/3 समझे वहां, अब तो 2/3 पहुंच गए गुड फ्राइडे के दिन। अगर 2/3 जगत की उत्पत्ति से गुड फ्राइडे के दिन चल के पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत लंबा पीरियड है, वो लाखों साल का पीरियड है, तो क्या अगले 2000 साल ये 2/3 नहीं ट्रेवल कर सकते? क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं कोट पढ़ने जा रहा हूं कि ये भरमाना फिर से अब होगा अंत के दिनों में। आओ हम एक हो और हम एक हो जाएं, है या नहीं? एक कहानी सुनाएगा, इतने चिन्हों को आकाश में दिखाने के बाद कहेगा आओ क्यों ना हम एक पशु की मूरत बनाएं। समझ मारी है? फिर गिरेंगे 2/3। चक्कर क्या है? जो गिरे थे
वो इनमें आ गए। ये मरे तो आज इनमें आ गए। कहानी वो ही सुनाएगा जो हमेशा से सुनाता आया है। तो अजीब नहीं लगता आपको? He said, उन्होंने कहा, he drew the stars of heaven, उसने सितारों को जो आकाश के थे खींच लिया cast them on the earth. और पृथ्वी पे गिरा दिया। He said that happened the day Christ was crucified. उन्होंने कहा ये उस दिन हुआ जिस दिन मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। But you see, he couldn't catch hold of the man child. पर आप जानते हैं वो नर बच्चे को पकड़ नहीं पाया। No, 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 no. नहीं नहीं, इसका मतलब जब उनको पैसे दिए जा रहे थे, अब मैं हिंदी में बोलूं, बरअब्बास मांगना, अंदर कौन बैठा था? जब मांगने का टाइम आए तो यीशु मत मांगना, बोलना बरअब्बास। और वो जो पैसा लेने वाला है, मैं पूछता हूं उसमें कौन बैठा था? देने वाले के अंदर कौन था और लेने वाले के अंदर कौन बैठा था? कि जब मौका आए बोलने का, बोल देना बरअब्बास। कौन बैठा था इनके अंदर? और वही आज अंदर बैठ के कहता है, बहुत स्पिरिचुअल मीटिंग थी हमारी पोप के साथ, क्यों ना हम एक हों। जैसा सुबह भाई कोर्ट को पढ़ रहे थे, और वही आत्मा बड़े अलग रूप में आज काम कर रही है, एक कहानी सुना के। कहानी कहां सुनाई? अरे भाई, अगर अकल खुल जाए तो ऐसे बैठोगे नहीं आज यहां पे। This story he told in heaven. ये कहानी उसने स्वर्ग में सुनाई। So where did he start his story today? तो आज वो अपनी कहानी कहां चालू करता है? In that heaven. उस आकाश में, उस स्वर्ग में। By proving that cloud is not supernatural. ये साबित करने के द्वारा कोशिश कर रहा है कि ये बादल अलौकिक नहीं है। To prove this message is false. ये साबित करने के लिए कि संदेश झूठा है। And in any case, और फिर भी मैं कहता हूं, और वैसे भी all the denominations will have to say yes, 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 yes. We always know he is not right a man. हाँ, हर एक संस्थागत गिरजा तो ये कहेगा हाँ हाँ हाँ, हम तो ये जानते हैं हमेशा से कि वो ठीक आदमी नहीं। We always had doubts regarding that cloud. Sit down, please. हम सबको बादल के ऊपर लेके शक थे। And now it's confirmed. It was not supernatural. और अब ये पूरा पुष्टिकृत हो गया कि यह अलौकिक नहीं है। Not only them, और केवल वो ही नहीं, but you see, it touched the seed of Abraham. उसने छुआ अब्राहम के वंश को, The natural seed. प्राकृतिक बीज को। Those Jews वो यहूदी who got deceived जो धोखे में आ गए and betrayed him और उसको उन्होंने धोखा दिया and crucified him. और उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। They worked together with Rome. वो रोम के साथ मिलके उन्होंने काम किया। If Rome was the political power, Jews were the religious power. अगर रोम राजनीतिक शक्ति थी तो यहूदी लोग धार्मिक शक्ति थे। Of that same devil उसी शैतान के who joined together to crucify Christ. जो इकट्ठा एक हुए ताकि मसीह को क्रूस पे चढ़ाए। And the same devil working in Rome was the devil working in these religious priests. और वही जो शैतान रोम में काम कर रहा था, वही शैतान था जो कि इन धार्मिक याजकों में काम कर रहा था। And it's the same demon today और ये वही दुष्ट आत्मा है आज who started his story from heaven. जिसने अपनी कहानी को स्वर्ग से चालू किया। That was not supernatural. वो अलौकिक नहीं है, But he has a seed. पर उसके पास एक बीज है। And where Branham said, भाई ब्रह्म ने कहा there was some in heaven कुछ थे स्वर्ग में who didn't believe the lie of the devil. जिन्होंने शैतान के उस झूठ पे यकीन नहीं किया। And I believe that same seed would be tonight. और मैं विश्वास करता हूँ वही आज रात्रि बीज यहाँ भी होगा। Oh God, if I can have that voice. ओ खुदावन अगर मेरे पास वो आवाज आ पाए, Who will never hear that story, that tale which he's telling. वो जो कि सुनेगा नहीं कभी उस कहानी को, उस कथा को जो वो आज बताता है। I have proofs. I have proofs. वो मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। I don't know that God allowed those proofs ये नहीं जानते कि खुदा ने ही अनुमति दी है उन सबूतों को for लाने them की, to be confused. ताकि वो पशोपेश में आए। Yet we have a cloud तो अभी हमारे पास बादल है with two pictures, जिसमें दो तस्वीरें हैं, as I was showing you today morning. जैसे मैं आज सुबह आपको दिखा रहा था। One particular view
God allowed with a double cloud. एक खास उसका जो दृश्य है खुदा ने अनुमति दी जिसमें दो बादल आ रहे हैं, And that was 6:30 p.m. और वो था 6:30 बजे शाम के, when it was taken from Winslow. जब वो विंसलो से लिया गया। This is a Winslow one. No, this is a Prescott, brother. And this was the Winslow. ये विंसलो वाला है। The Winslow move. वो जो विंसलो का जो मूव था, That was the one. ये था वो मूव था, That was the one ये था वो which showed to some people जिसने कुछ लोगों को दिखाया that other cloud. उस दूसरे बादल को। And they said that was rocket fuel, उन्होंने कहा ये रॉकेट फ्यूल है, but this is not rocket fuel. पर वो रॉकेट फ्यूल नहीं है। आमेन। But unfortunately, पर दुर्भाग्यवश the magazine Brother Branham referred to didn't have that picture. जिस मैगजीन को भाई ब्रैनम ने रेफर किया उसमें वो तस्वीर थी नहीं। Why? क्यों? So that the unbeliever will remain an unbeliever. ताकि अविश्वासी बना रहे। यस, But for a believer, हर एक विश्वासी के लिए he doesn't believe in those tales, वो ऐसी कथाओं में यकीन नहीं करता, the lies he tells. वो झूठ जो वो बोलता है। Do you know what was the first lie? आप जानते पहला झूठ क्या था? He attacked the deity of God. उसने खुदा की खुदायत पे प्रहार किया। And this cloud, Brother Branham said, अब और ये भाई ब्रैनम ने बोला ये बादल is the supreme deity of God. ये खुदा का सर्वोच्च खुदायत है। What is he doing again? वो फिर से क्या कर रहा है? Attacking the deity. खुदा की खुदायत पे प्रहार कर रहा है। Same devil, वही शैतान, same lies. वही झूठ। But let me tell you, और मैं आपको बताना चाहूंगा he's already drawing many even from this message. वो अब काफी समय हुआ कि बहुतेरों को इस संदेश से भी खींच के ले जा रहा है। अच्छी बात है, कचरा साफ होना चाहिए। यस यस, कचरे की सफाई के लिए ये चीजें रखी जाती हैं Amen. कि कचरा निकल सके, ताकि वो मटेरियल रह जाए जिनसे फाइनली मुझे कई और बातें करनी हैं। आपकी समझ में आ रही है? सेम devil वही शैतान telling the same stories. वही कहानियों को बता रहा है। And what Branham said that happened on Good Friday. अब हमने कहा ये हुआ गुड फ्राइडे को। When did this cloud come? ये बादल कब आया? 1963. 1963 में। The year the prophet preached indictment. उस साल जिस साल नबी ने प्रचार किया दोषारोपण, When he talked about crucifixion of Christ the second time. जब उन्होंने बात करी मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय में दूसरी दफा In this age. इस युग में। And what happened? और क्या हुआ? At that second crucifixion. उस दूसरे क्रूसित करे जाने पे In this age. इस युग में Again he told a tale. एक बार फिर से उसने कहानी सुनाई To draw 2/3 to himself. ताकि 2/3 को अपने ओर खींच ले। Same devil. वही शैतान, Same policies. वही उसकी नीतियां हैं, But same God. परंतु वही खुदा, Same Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा And same revelation. और वही प्रकाशन। आमीन, हालेलुया। Are you understanding the message? क्या आप संदेश को समझ पा रहे हैं? God give you grace if you do. खुदावन आपको अनुग्रह दे अगर आप समझ पाते हैं तो। Because this what we are preaching would tie up later with future home. क्योंकि ये जिसका हम प्रचार कर रहे हैं जुड़ेगा भविष्य वाले घर से। Now please sit down. अब कृपया बैठिए, Because we are coming to something. क्योंकि हम किसी बात पे आ रहे हैं And I believe you are going to understand it. और मैं आशा करता हूं आप इसे समझ पाएंगे, विश्वास करता हूं। And there appeared another wonder in heaven. और एक और बड़ा चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। And behold, a great red dragon, और देखो वो लाल बड़ा अजगर having 7 heads and 10 horns, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, and 7 crowns upon his head. और उसके सिर पर 7 राजमुकुट थे, And his tail drew the 3rd part of the stars of heaven. और उसकी कहानी ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। God bless you, said the right word. And the dragon stood before the woman, और वो अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ which was ready to be delivered, जो बच्चा जनने के लिए तैयार थी, for to devour her child as soon as it was born. ताकि उसके बच्चे को निगल ले जैसे ही वो पैदा हो। You know what happened at his birth? आप जानते उसकी पैदाइश पे क्या हुआ? Rome, that spirit of Rome wanted to kill him वो रोम जो कि आत्मा थी रोम की, वो उसको मारना चाहती थी through Herod, हेरोदेस के माध्यम से, but he fled. पर वो भाग गया वहां से। Then Rome tried to kill him at the cross. जब रोम ने उसको क्रूस पे मारना चाहा, He was caught up to heaven. वो स्वर्ग में उठा लिया गया। Verse 5. 5वीं आयत, And she brought forth a man child और वो बेटा जनी who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. जो लोहे के राजदंड के लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक खुदा के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर
पहुंचा दिया गया। That's Christ. वो मसीह है। Now comes the interesting part. अब आता है दिलचस्प हिस्सा, 6th verse. 6ठी आयत। And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां खुदा की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो 1260 दिन तक पाली जाए। Follow the sequence. इसका क्रम देखिए। She brought forth a man child, वो एक नर बच्चे को पैदा करती है, and after the man child escaped the dragon, और जब नर बच्चा जो है उस लाल अजगर से बच निकला, उसके बाद then after delivering that child, उस बच्चे को पैदा करने के बाद the woman fled into the wilderness, स्त्री जंगल में भाग गई, where she had a place prepared of God, जहां उसके लिए खुदा के द्वारा एक जगह तैयार की गई थी that they should feed her there 1,260 days. कि वहां पर उसे 1260 दिन तक खिलाया जाए। Now that was not the first coming. अब ये पहली आमद नहीं थी। If you follow the word, अगर आप वचन का क्रम देखें, when Christ was raptured, जब मसीह का रैप्चर हुआ, when that man child went up, जब वो नर बालक ऊपर चला गया, that Orthodox Jewish church, I would say Israel, that brought forth that Christ, वो कट्टर यहूदी कलीसिया, मैं कहूंगा जो इजराइल था, वो मसीह को लेके आया, जो मसीह को लेके आई थी, जो मसीह को लेके आई थी, she didn't flee to any wilderness. वो किसी जंगल में नहीं भागी। When is this part of the prophecy going to be fulfilled or has been fulfilled? कहां पर यह हिस्सा नबूवत का पूरा होगा या पूरा हो चुका है? And she fled into the wilderness, और वो जंगल में भाग गई, where she would be nourished for 1,260 days. जहां पर वो 1260 दिन तक के पाली पोसी जाएगी। Is that right? क्या बात ठीक है? Whenever you read in the book of Revelations 1,260 days, जब कभी आप प्रकाशवा की किताब में पढ़ते हैं 1260 दिन, it always refers to that 3.5 years that's yet in future. ये हमेशा संकेत देता है उस 3.5 साल की ओर जो अभी बाकी रह गया है भविष्य में। Something will happen during those 3.5 years, कुछ खास होगा उन 3.5 साल के दौरान, that this Jewish church would flee from the face of this dragon. कि ये यहूदी कलीसिया बच निकलेगी इस अजगर के सामने से। Yes. ये बात ठीक है? Is that much clear? क्या बात ठीक है? How will it happen? कैसे ये होगा? क्या इतना स्पष्ट है? कैसे ये होगा? कैसे ये होगा? How will it happen? Yeah, sorry I said that. That is also mentioned. ये भी इसका उल्लेख भी दिया गया है। आपने इतना तो समझ लिया? Amen. She brought forth a man child. वो एक नर बच्चे को लेके आती The है। man child is caught up to heaven. नर बच्चा स्वर्ग में उठा लिया जाता है। That is Christ, ये मसीह है who was caught up to heaven. जो स्वर्ग में उठा लिया गया। And then that Orthodox church, और फिर वो जो ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है, you know, Israel ceased to be a nation. आप जानते हैं इजराइल एक राष्ट्र नहीं रहा था, You know but now it's gathered back in the homeland. पर हाँ अब वो वापस इकट्ठा किया गया है देश में। And now और अब she is going to flee from the face of the dragon. वो इस अजगर के सामने से भाग जाएगा, भाग जाएगी, यस, for 1,260 days, 1260 दिन के लिए, where she will be nourished. जहां पर उसे उसका नरेशन में उसको पाला जाएगा। Are you understanding it, please? क्या आप समझ रहे हैं? When the beast will surround Jerusalem, जब पशु यरूशलेम को घेर लेगा and try to finish Israel, और इजराइल को खत्म करने की कोशिश करेगा, there is a last day event written in the scriptures, please. एक आखिरी दिन की घटना है जो कि पवित्र शास्त्र में लिखी Turn with me है। to the book of Zechariah, मेरे साथ निकाल लीजिए जकरिया नबी की किताब, chapter 14. उसका 14वां अध्याय, I'm reading from 14वां अध्याय, verse 4. और हम चौथे आयत से पढ़ेंगे। And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave
in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north and half of it toward the south. Just read it, brother. उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। Verse 5. 5वीं आयत। And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountain shall reach unto Azal. Yea, ye shall flee like as he fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee. तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्ड आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा खुदा यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। You know that's Revelations 19. आप जानते हैं प्रकाश वाक्य 19 है। But what's happening at that time? पर उस समय क्या हो रहा है? When his feet touch the Mount of Olives. जब उसके पैर जैतून पर्वत को छूते हैं। Brother Branham said in the message, attraction on the mountain. भाई हमने कहा उस संदेश में पहाड़ पे क्या आकर्षण है? Did you see something? क्या आपने कुछ देखा? Earthquakes splitting open the mountains. जो भूकंप है वो पहाड़ों को खोल रहे हैं, बांट रहे हैं। That earthquake like it came in the days of Uzziah. वो भूकंप भूचाल जैसे उजिया राजा के दिन में आए थे। Same earthquake. वही भूचाल Splitting open the earth. जो कि पृथ्वी को फाड़ रहे हैं And making a way of escape. और एक बच निकलने का मार्ग निकाल रहे हैं। For you people. तुम लोगों के लिए। Who is you people? तुम लोग कौन हो? Who's Zechariah talking to? जिससे जकरिया बात कर रहा है। Jews. यहूदियों से। Israel. इजराइल से। You shall flee. तुम भाग निकलोगे। That woman fled. वो स्त्री भाग गई। Amen. How? It's now and mentioned there. कैसे? अब यहाँ पर उसका उल्लेख दिया गया है। Earthquakes will help this woman. भूचाल भूकंप इस स्त्री की मदद करेंगे। To flee from the face of the dragon. ताकि अजगर के सामने से भाग निकले। And who will bring that earthquake? और वो भूचाल कौन लेके आएगा? When 2 feet touch that mountain. जब हालेलुया हालेलुया जब वो 2 पैर उस पहाड़ को छुएंगे। And how Brother Branham took that instance और कैसे भाई ब्राह्मण ने उस घटना को लिया and tied it with the second coming, और उसे जोड़ा दूसरी आमद के साथ which is today. जो आज है। हालेलुया आमेन। Are you seeing something? क्या आप कुछ देख पाते हैं? आमेन आमेन ग्लोरी। लेकिन शायद हमें अभी इतना खुश नहीं होना चाहिए ब्रदर, क्योंकि यह सब है तो इजराइल के लिए ही। आइए मेरे को ड्रामा ही करने दीजिए चाहे थोड़ी देर के लिए। कि स्पष्ट शब्दों में भाई ब्रनम ने बोला है ना कि ये स्त्री इजराइल है। भाई आमीन, इजराइल है। लेकिन उसी भाई ब्रनम ने कुछ और भी बोला है जो अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा थोड़ी देर में। इसी प्रकाशित वाक्य 12 स्त्री और इन घटनाओं को लेके, और तब मुझे आप बताएं कि ये स्त्री है कौन। अभी मैं इजराइल को ही लेके चल रहा हूं, मैं अन्य जातियों की तरफ मुड़ूंगा भी नहीं। मैं यही दिखाऊंगा कि इजराइल में क्या हुआ और क्या होगा। उस नर बच्चे मसीह को पैदा करने के बाद वो स्त्री विल्डरनेस में भागेगी। विल्डरनेस में भागेगी कैसे? मसीह के पैर जब जैतून पहाड़ पे पड़ेंगे, वो पहाड़ 2 हिस्से होगा, और जहां एक रास्ता नहीं था एक रास्ता बन जाएगा, जिसे ए वे ऑफ एस्केप कहते हैं, बचाव का रास्ता। अब वो भाग के उस रास्ते से पशु और उसकी सेना के सामने से बच निकलेंगे। वो रास्ता बनाएगा कौन? जब वो बलि, जो भी कह लीजिए, जब अपने 2 पैर जमीन पे रखेगा, it will bring an earthquake, एक भूचाल लेके आएगा which will open the earth. जो कि पृथ्वी को फाड़ेगा। No. Very interesting. बहुत दिलचस्प। You mean brother Ashish? आपका मतलब भाई आशीष, It is earthquakes that will help this woman. ये भूचाल हैं जो इस स्त्री की मदद करेंगे। But we know earthquake is a plague. पर आप जानते हैं भूचाल तो एक विपत्ति है।
It is one of the plagues. ये विपत्तियों में से एक है। And you mean the plagues are helping this woman? आपका मतलब है कि विपत्तियां इस स्त्री की मदद कर रही हैं? Amen. That last plague helped the Jews in the Exodus. उस आखिरी विपत्ति ने मदद करी यहूदियों की निर्गमन में। You see, you have not understood this. Pick up the rock and throw it. आप पाएंगे, आप इसको समझ नहीं पाए कि इस पत्थर को उठाओ और उछाल। It was a sign of ending of Laodicea. ये एक चिन्ह था लाउदीकिया के समापन का। Los Angeles going under the ocean. लॉस एंजलिस नीचे जा रहा है। And the graves being opened. और कब्रें खुल रही हैं। And the bride being raptured. और दुल्हन का रैप्चर हो रहा है। हालेलुया। आमेन, आमेन। Sit down. बैठिए। God bless you. खुदा आपको बरकत दे। Come back to chapter 12. आइए वापस 12वें अध्याय में। इतना तो समझ में आ गया। इसने एक नर बच्चा पैदा किया, बच्चा स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन। 40वें दिन मसीह उठा लिए गए और बादलों में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल सही पिक्चर है। फिर स्त्री को ये भाग गई कहां? जंगल में, जहां शी इज नरिश्ड फॉर 1000। अब दिन देखिए, 1260 डेज। ये 1260 दिन तब तो आए नहीं ब्रदर। यस। तो ये कब आएंगे? तब तो रोम ने आके ज्यूज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, कोई बच नहीं पाया। तो ये आयत कहां फिट हो रही है 1260 दिन वाली? ये पहली आमद पे नहीं है। अब ये जंप मार गए इस वाले टाइम पे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। इन फैक्ट द होल बाइबल, आयतें तो ऐसे लिखी हैं लेकिन दोनों के बीच में इतना अंतराल है। यह है खूबसूरती बाइबल की और प्रकाशवा की पुस्तक की कि आयतें तो एक साथ लिखी हैं पर काफी लंबे अंतराल उसमें पाया जाता है। And I know I'm preaching future home for you. और मैं जानता हूं आपके लिए मैं भविष्य वाला घर प्रचार कर रहा हूं। But this week the Lord told me, the day I was that same day brother Chirag got operated, and you know that sign thing, all those things operated. He told me go back to the book of Revelations. पर ये वो समय था, मैं आप जानते, मैंने आपको बताया अभी जब मैं उस किताब को पढ़ा था, भाई चिराग का ऑपरेशन हुआ, तो ये वो समय था उन्होंने बोला मेरे को वापस जाओ प्रकाशवा की किताब में। There's something there. वहां पर कुछ है। And I came to chapter 10. और मैं 10वें अध्याय पे आया। And what is chapter 10? और क्या 10वां अध्याय है? We'll come to it later on. हम उसमें आएंगे बाद में। But let me show you something. पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। She'll be nourished for 1260 days. 3 score. 1 score is 20, so 3 score means 60. Yes. हाँ, वो पाली पोसी जाएगी 1260 दिन, जिसमें लिखा है 3 स्कोर। स्कोर मतलब 1 20 होता है। Yeah. तो 3 स्कोर होगा 60, तो 1260 दिन She will be nourished. उसको पाला पोसा जाएगा। Israel, इजराइल the Jewish church, यहूदी कलीसिया को she will be nourished. उसे पाला पोसा जाएगा। वो बच निकलेंगे। That's right. That's right. ये बात ठीक है। That Jewish church. वो यहूदी कलीसिया 1,40,000 भी मैं कह सकता हूं, मैं बाकी समस्त इजराइल भी बोल सकता हूं। समस्त इजराइल भी होगा, क्योंकि सारे इजरायली मार नहीं दिए जाएंगे। और आप इज़केल की किताब पढ़ें और वचन को ध्यान से पढ़ें, शेष भाग इजराइल का रहेगा जो मिलेनियम तक पहुंचेगा। अगर सब मरी जाएंगे तो मिलेनियम कौन पहुंचेगा? खाली मिलेनियम में वो इजराइल नहीं होगा जो 1,44,000 है, बाकी भी शेष कुछ इजरायली रह जाएंगे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ, दान और इफ्राइम तो 1,44,000 में है ही नहीं, तो फिर आप दान इफ्राइम को मिलेनियम में कहां से पढ़ रहे हैं? समझ की बात है। यानी शेष बचे इजरायली होंगे 1,44,000 के अलावा जो मिलेनियम में भी पहुंचेंगे। ये कैसे बच निकलेंगे? क्योंकि ये सब मिला के वो स्त्री बनी, यानी यहूदी कलीसिया जिसने उस नर बच्चे को पैदा किया था। तो ये सब निकल के भागे। कैसे भागे? ऐसे भागे जो ये जकरिया 14 में लिखा है, और वहीं लिखा है शाम के समय। हाय हाय, अरे पढ़ते पढ़ते अचानक पहुंचा दिया शाम के समय। यार ये शाम का समय कैसे आ गया? क्या वो है शाम का समय? या अब यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये कौन से दिन की बात हो रही है? यही तो चक्कर है। चक्कर बहुत बड़ा है, लेकिन चक्कर पवित्र आत्मा समझाएंगे। अभी 2 मिनट में एक बात और समझ में आएगी। चलिए थोड़ी देर और चलिए मेरे साथ।
अब आइए 7वीं आयत से, and there was war in heaven. फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, And prevailed not. परंतु प्रबल ना हो पाए। Neither was their place found any more in heaven. और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। There was no place found for them where the cloud was. उनके लिए जगह नहीं रही वहां पर जहां पर बादल था। Amen. brother. Hallelujah. And the same angels of Michael fighting for this gospel today. क्या ऐसा नहीं कि वही मिकाएल के दूत आज इस सुसमाचार के लिए लड़ रहे हैं? For the gospel of this cloud. इस बादल के सुसमाचार के लिए? Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई। We are. जी हाँ हम हैं। Yes. Amen. And it says that dragon prevailed not, neither was their place found any more in heaven. और वे कहता है कि वो जो अजगर था वो काबिज नहीं हो पाया और उसके लिए उनके लिए कोई जगह नहीं मिली स्वर्ग में। And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। Praise the Lord. जितने भी भरमाने में आए थे उसके साथ गिरा दिए गए, लेकिन कुछ मिकाएल के साथ स्वर्ग में बने रहे। Amen. 10th verse. 10वीं आयत। And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे खुदा का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। And they overcame him. Who? Michael's angels. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. वे कौन? वे जो मिकाएल के दूत थे, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। क्या आपको मालूम स्वर्गदूत नहीं मर सकते? Amen. तो ये मरने वाले कौन हैं जिन्होंने प्राण को प्रिय नहीं जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली? तो ये मिकाएल के दूत फरफराने वाले नहीं हैं। Yes. Amen. कौन हैं जो लड़ रहे हैं? मिकाएल के दूत, Amen. Amen. जिनको लहू की जरूरत है। Amen. Yes. Hallelujah. यस। Amen. अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बिकॉज कोई पॉइंट है मैं जिस पे मैं आ रहा हूं। Verse 12. 12वीं आयत। Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because you knoweth that he hath but a short time. इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। He didn't say 3 times woe now. उसने अब 3 दफा हाय नहीं कहा, He just said woe once. उसने केवल हाय एक ही दफा बोला, Because that's the third woe waiting. क्योंकि वो तीसरी हाय है जो इंतजार कर रही है। He said woe, woe, woe in Revelations 8. उसने हाय 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 बोली थी प्रकाश वाक्य 8 में, But in chapter 12, पर 12वें अध्याय में after this woman brought the man child, इस स्त्री के नर बालक को लाने के बाद and after the devil is cast down, और शैतान को नीचे गिराने के बाद he says woe. वो कहता है हाय। He didn't say woe, woe, woe. उसने हाय 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 नहीं कहा, Only one woe is left. क्योंकि केवल एक हाय बची है, That's the third woe. वो है तीसरी हाय। Behold, the third woe cometh. देखो तीसरी हाय आती है And the devil is cast down. और शैतान गिरा दिया गया है। And you know when the devil is cast down, और आप जानते हैं जब शैतान गिराया जाता है, he incarnates in a beast. वो एक पशु में मुजस्सम हो जाता है। That man called the false prophet, Lucifer, incarnates in that human body. वो आदमी जिसे झूठा नबी कहते हैं,
वो आदमी में लूसीफर मुजस्सम हो जाता है उस इंसानी देह में। Is that right? क्या बात सही है? This is what? When the devil is cast down. ये तब है जब शैतान गिराया जाता है। Verse 13. 13वीं आयत। And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। आमेन। जब उस पे सताव आया, अभी बाद में इजराइल की ही करूंगा, वैसे तो इजराइल ही है ये। आइए थोड़ा पढ़े मैसेज को। आमेन। वर्स 14। 14वीं आयत। And to the woman आमेन। were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए जी, कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। and the serpent cast out of his mouth water. You know what is water? Multitudes and people, as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman. I'm repeating it. Amen. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. आमीन। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी, आप जानते पानी क्या है, लोगों की बड़ी भीड़, नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने, मैं दोहराऊंगा, पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। क्या बहाया, क्या फेंका था अजगर ने अपने मुंह से? एक नदी। ये नदी क्या है? आपने कहा पानी, तो दिमाग में लोगों के क्या चलने लगा? ओखला पहुंच जाओ, वो पानी, ये पानी था, ऐसा ही पानी होगा। ये हैं तस्वीरें जो लोगों के दिमाग में बनती है। जिन्होंने प्रकाशित वाक्य को एक सिंबल्स की किताब समझा, वो गंगा यमुना नहीं सोचेंगे, वो कुछ और सोचेंगे। ये पानी जो उसके मुंह से निकला, सेनाएं हैं। यस। ग्रुप आफ्टर ग्रुप सेनाओं का इसको ढूंढता हुआ आएगा। तब पृथ्वी ने मदद करी अपना मुंह खोल के। व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ द माउथ ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के मुंह को खोले जाने का मतलब क्या अर्थ है? स्प्लिटिंग ओपन। पृथ्वी फट रही है। When the earth splits open, that's an earthquake. जब पृथ्वी फटती है तो एक भूचाल होता है। Earthquakes helps this woman. भूचाल इस स्त्री की मदद करते हैं। They swallow that flood वो उस बाढ़ को, उस नदी को पी जाते हैं। like they swallowed Korah and Dathan. जैसे उन्होंने कोरह और दतान को निगल लिया था, They will swallow these people. वो इन लोगों को निगल जाएंगे। And this woman, और ये she स्त्री, receives 2 wings इसे 2 पंख मिलते हैं that she fly in the wilderness. कि वो जंगल में उड़ के चली जाए। When does those 2 wings come? वो 2 पंख कब आते हैं? The hour this devil is cast down and he persecutes this woman. उस घड़ी में जब शैतान नीचे गिराया जाता है और वो इस स्त्री को सताओ लेके आता है इस पे। आमीन। आमीन। चलिए, let us read what the prophet said. आइए हम वो पढ़ें जो नबी ने कहा है। क्योंकि some people have said that's Israel. Don't read Revelations 12. क्योंकि कुछ लोगों ने कहा वो इजराइल है, प्रकाश वाक्य 12 मत पढ़ो। That's Israel. Now why do you read the Jewish side of the story? Read your part. ओ, क्यों आप यहूदी वाले हिस्से को पढ़ते हो अपनी कहानी के? वो तो इजराइल है, अपने हिस्से को पढ़ो। Revelation 12 is not for the bride. प्रकाश वाक्य 12 दुल्हन के लिए नहीं है। It's not for us Gentiles. It's for the Jews. You know it. ये हम अन्य जातियों के लिए नहीं है, यहूदियों के लिए, आप जानते हैं। I don't read Revelations 12. मैं प्रकाश वाक्य 12 नहीं पढ़ता। And here Brother Brian says, I'm going to tie Revelations 12 to future home.
और यहाँ भाई ब्रैनम कह रहे हैं मैं प्रकाश वाक्य 12 को ही जोड़ूंगा भविष्य वाले घर से। So it's so good to play the tapes. तो इसने इतना ज्यादा जरूरी है, बढ़िया है टेप बजाना। May you hear with your own ears what this prophet said. ऐसा हो कि आप अपने खुद के कानों से सुने नबी ने क्या कहा है। That's right. ये बात ठीक है। But now, just a minute. पर अब एक मिनट, Now here is a quote. अब यहाँ पर एक कोट है। How many of you got the seals book with you? कितनों के पास आपकी मोहरों की किताब है? And if those who don't have, I will request my brother Abhishek to help me और वे to जिनके put that here. और वे जिनके पास नहीं है, मैं अपने भाई अभिषेक से आग्रह करूंगा कि उसको वो यहाँ पर दिखा दे। Paragraph 362. मेरी 7 seals की किताब में paragraph 362 first seal. पहली मोहर का 362 अनुच्छेद है मेरी किताब में, सील्स की किताब में। निकाल लें। निकाल लें। Yes. I'll directly read it from here. यहीं से सीधे से पढ़ेंगे। Then in Revelations 12, 7 to 9. तब प्रकाश वाक्य 12 में 7 से 9 आयत तक, When Satan is cast out, जब शैतान गिरा दिया जाता है, the accuser. वो दोष लगाने वाला। You want to put that down? क्या आपको उसको लिखना चाहते हैं? Because I want you to read it. क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसे पढ़ें। और उनका क्या जो कहे, I don't want to read it. उनका क्या होगा जो कहेंगे मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। This is not my part. अरे ये मेरा हिस्सा नहीं है। They're Jews. ये तो यहूदी हैं। Why should I read it? क्यों मैं इसे पढ़ूं? A prophet is saying, नबी ये कह रहे हैं, I want you to read it. मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। So should we read it? तो क्या हमें पढ़ना चाहिए? Every scripture is mine. हर एक आयत, हर एक वचन मेरा है। That's right. Listen now. सुनिए अब, Because I want you to read it. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। We haven't got time now. हमारे पास अब समय नहीं है। It's close 20 or 15 till 10. See, रात के करीब 9:45 बज चुके थे वहां. 9:45 बज गए हैं लगभग। But in Revelations 12, 7 to 9, परंतु प्रकाश वाक्य 12, 7 से 9 में, Satan, the spirit, the devil, शैतान, वो आत्मा, वो शैतान, which is up there now, जो कि अभी अब वहां पर ऊपर है, accuser of our brethren. हमारे भाइयों पे दोष लगाता है। All right. ठीक है। The church is taken up and Satan is cast out. कलीसिया ऊपर उठाई जाती है और शैतान नीचे गिराया जाता है। ये right. कौन सी कलीसिया? Which church is Brother Branham talking about now? कौन सी कलीसिया के बारे में आप भाई हम बात कर रहे हैं? He's not talking about the Jews now, brother. मेरे भाई वो यहूदियों के बारे में बात नहीं कर रहे अभी। He is now talking about the Gentile bride. वो बात कर रहे हैं अन्य जाति दुल्हन के बारे में। Very clear, there's no doubt on that. बिल्कुल स्पष्ट बात है, इस पे कोई संदेह नहीं है। When the church goes up, जब कलीसिया ऊपर जाती है, Satan comes down. शैतान नीचे आता है। Then Satan incarnates himself in the Antichrist. तब शैतान अपने आप को मुजस्सम करता है मसीह विरोधी में। Which aspect of Revelations 12 is Brother Branham hitting? कौन सा पहलू भाई ब्रैनम जो है प्रकाशित प्रवाक के 12वें अध्याय का लेके आ रहे हैं? The casting down of the dragon. उस अजगर के गिराए जाने वाला हिस्सा। Because the unwritten part is, क्योंकि जो लिखा हुआ हिस्सा नहीं है वो ये है, that's the time the church goes up. ये वो समय है कलीसिया ऊपर जाती है। So the date of rapture is written there. तो रैप्चर की तारीख वहां लिखी है। हालेलुया, आमेन, आमेन। When Satan comes down, जब शैतान नीचे आता है, that's when the church goes up. ये वो समय है जब कलीसिया ऊपर जाती है। आमेन। Church, you know, is a woman. कलीसिया आप जानते हैं कि स्त्री है। Since he's a Bible prophet, क्योंकि वो बाइबल का नबी है, he must be drawing it from the Bible. वो इसको बाइबल से लेंगे। And that Bible is Revelations 12. और वो बाइबल प्रकाश वाक्य 12 है। When that Satan is cast down, जब वो शैतान नीचे गिराया जाता है, we read the other part. हमने दूसरे हिस्से को पढ़ा। He started persecution of that woman. उसने उस स्त्री का सताव चालू कर दिया। Not tribulation, कष्टकाल नहीं, persecution. सताना। यस।
Amen. This bride will never go through any tribulation, ये दुल्हन कभी भी किसी कष्टकाल से होकर नहीं गुजरेगी, but a small period of boycott, परंतु एक छोटा समय बहिष्कार का, which he also called as the squeeze. जिसको उन्होंने दबाव के रूप में भी बोला। So when does the squeeze comes? तो दबाव कब आता है? When Satan is cast down. जब शैतान नीचे गिराया जाता है। Amen. 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 What is the first thing he does when he's cast down? पहली चीज क्या है जब वो करता है, जब वो गिराया जाता है? He attacks two nations, वो दो राष्ट्रों पे प्रहार करता है, आक्रमण करता है, America and Rome, अमेरिका पे और रोम पे, and finishes the dollar of America अमेरिका का डॉलर खत्म कर देता है and brings the Pope और पोप को लेके आता है to the forefront सामने सुर्खी पे, so that he can enter that man as a beast. ताकि वो उस आदमी में घुस जाए एक पशु के रूप में। For him to become the beast, Lucifer needs to enter the false prophet, and him to receive the throne, you need a political power, and that power is America. उसके लिए पशु बनने के लिए जरूरी है कि लूसीफर जो है वो उस झूठे नबी में घुस जाए और झूठे नबी और Okay, I'll repeat it. For Lucifer to sit in a man to rule the earth, लूसीफर के लिए कि वो इस पृथ्वी पे बैठ के एक आदमी में राज I'm करे, saying sit in a man. एक आदमी में If you can बैठे। put it off, I think you will not hear the echoes. You are able to hear clearly? For him to sit in a man लूसीफर के लिए कि वो एक आदमी में बैठे and rule the earth और पृथ्वी पे राज करे in the tribulation, उस कष्टकाल के समय में, to bring that Pope to the forefront, ताकि पोप को सामने लेके आए। you cannot do it as a church. आप इस काम को एक कलीसिया के रूप में नहीं कर सकता। It can only happen through a strong political power. ये केवल एक बड़े ही दृढ़ और बलवान राजनीतिक शक्ति के द्वारा ही हो सकता है, And that is United States. और वो है अमेरिका। So what happens? तो क्या होता है When Lucifer is cast down, जब लूसीफर नीचे गिराया जाता है? he starts in these nations, वो चालू होता है इन राष्ट्रों में होके, especially in America. खास तौर से अमेरिका में। Amen. Amen. अचानक आप पाएंगे चीजें तेजी से होने लगेंगी जो हो भी रही हैं अब. Yes. Who is making them do it? कौन इन चीजों को करवा रहा है? The dragon that was cast down. वो अजगर जो नीचे गिराया गया है। Listen now. सुनिए अब। And when he's cast down, और जब वो नीचे गिराया जाता है, he persecuted the woman. उसने स्त्री को सताया। That's not Gentile bride. That's Jews. हाँ, वो तो अन्य जाति दुल्हन नहीं है, वो तो यहूदी हैं। Again, I'm careful. फिर से मैं सतर्क हूँ, ध्यान पूर्वक। I'm reading Revelation 12 from here. मैं प्रकाशवाक्य 12 को यहाँ से पढ़ रहा हूँ। When the dragon, the Satan is cast down, जब वो अजगर जो शैतान है नीचे गिराया जाता है, the church goes up. कलीसिया ऊपर जाती है। The timing of rapture is written there. जो टाइमिंग है रैप्चर का, जो समय है वो वहां लिखा है। When devil is cast down, जब शैतान नीचे गिराया जाता है, follow that. इसका अनुकरण करिए। Amen. What's the background, Brother Branham? इसके पीछे भूमिका क्या है भाई ब्रैनम? The Bible says, बाइबल ये कहती है, when the dragon was cast down, जब वो अजगर नीचे गिराया गया, he persecuted the woman, उसने स्त्री को सताया, which brought forth that man child. जो उस नर बच्चे को लेके आई। And verse 14 says, और 14वीं आयत ये कहती है, and to the woman were given 2 wings of a great eagle. और स्त्री को दिए गए 2 महान पंख एक उकाब के, That she might fly into the wilderness. कि वो उड़कर जंगल में चली जाए। तो किसी ने जवाब में कहा, of course. बेशक, किसी ने कहा जवाब में, 2 wings of an eagle. उकाब के 2 पंख, That's Moses and Elijah. वो मूसा और एलिया हैं, That'll come to the Jews. जो यहूदियों के पास आएंगे। Yes. हाँ, But in this case, पर इस मामले में the church that's going up, वो कलीसिया जो ऊपर जा रही है, the church that is flying, वो कलीसिया जो उड़ रही है, is Amen, not a Jewish church. ये यहूदी कलीसिया नहीं है। Amen. That's a Gentile church, वो अन्य जाति कलीसिया है, which goes up when the devil comes down. जो ऊपर जाती है तब जब शैतान नीचे आता है। शैतान के नीचे आने पे यहूदियों का रैप्चर नहीं होता. Amen. No.
Amen. The church that's raptured at that time is a Gentile bride. वो कलीसिया जिसका रैप्चर होता है उस समय में, शैतान के गिराए जाने के समय में, वो अन्य जाति दुल्हन है। And Brother Branham is talking about that church. और भाई ब्रैनम उस कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं। Read up, read down, you'll find it. ऊपर पढ़िए नीचे पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। Then if it's the Gentile church, तो फिर आप जब ये अन्य जाति कलीसिया है, suddenly Revelation 12 now has a dual meaning. अतः का अब दोहरा मतलब हो गया। Yes, it's a Jewish church, हाँ ये यहूदी कलीसिया है, but it's also a parallel of a Gentile church. पर ये समानांतर है अन्य जाति कलीसिया की भी। When you follow birth pains, जब आप प्रसवता की पीड़ा को समझें, he said every prophet that came to Israel was a birth pain. उन्होंने कहा हर एक नबी जो इस्राएल के पास आया वो एक प्रसवता की पीड़ा थी। And finally they brought forth a Christ. और आखिरकार वो लेके आए मसीह को। Then he said, तब उन्होंने कहा every messenger was a birth pain. तब उन्होंने कहा हर एक संदेशवाहक एक जच्चा की पीड़ा थी। Messengers, 7 messengers never came to Israel. 7 संदेशवाहक कभी इस्राएल के पास नहीं They गए, came to a Gentile church. वो आए एक अन्य जाति कलीसिया के पास। Luther was a birth pain. लूथर एक प्रसवता की पीड़ा थी, Wesley was a birth pain. इसलिए एक जच्चा की पीड़ा थी। Follow it. इसका अनुकरण करें। Then in this age, फिर इस युग में the man child came नर बालक आया, as son of man. मनुष्य के पुत्र के रूप में It formed on earth वो रूप लिया उसने उसको पृथ्वी and it पे, was caught up. और वो उठा लिया गया। And we saw that face in the sky. और हमने उस चेहरे को देखा आकाश में। Amen. 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 Are you following it? क्या आप ये समझ रहे हैं? And the woman और स्त्री that brought forth that Christ, जो उस मसीह को लेके आई, that reproduced that Christ, जिसने उस मसीह को पैदा किया, when the dragon was cast down, जब अजगर नीचे गिराया गया, it persecuted that woman. उसने इस स्त्री को सताया। Now do you understand it? अब आप समझ रहे होंगे इसको। In that hour of persecution, sit down, उस सताव की घड़ी में, बैठिए कृपया, she was given 2 wings उसे 2 पंख दिए गए। that Amen. she should fly. कि वो उड़े। Follow it. इसका अनुकरण करिए। These 2 wings will come according to scripture when she is persecuted. ये 2 पंख वचन के अनुसार तब आएंगे जब उस पे सताव होगा, Not when she's fine, तब नहीं जब वो ठीक ठाक है, आराम से है। but when that squeeze comes, पर जब वो दबाव आएगा, that's when those 2 wings come. ये तब होगा समय जब वो 2 पंख आएंगे And this woman is raptured और इस स्त्री का रैप्चर हो जाएगा, to be nourished. ताकि पाली पोसी जाए। What is nourishment? भोजन देना, नरिशमेंट क्या होता है? Eating. खाना। What will be she eating? वो क्या खाएगी? The wedding supper. ब्याह का भोज। For how many days? कितने समय थे? 3.5 years. 3.5 साल तक। Amen. So this woman fleeing in the wilderness तो ये स्त्री जो भाग के जंगल में जा रही है, is not just the Jewish church in 3.5 years. ये केवल अन्य जाति जो यहूदी कलीसियाएं नहीं है जो 3.5 साल के समय में होगी, It's a rapture of a Gentile bride. ये एक अन्य जाति दुल्हन का रैप्चर भी है। In this background, इस भूमिका में something struck me. किस चीज ने मुझे छुआ? I'll read that verse again. मैं शायद को फिर से पढ़ूंगा। That's verse 14. 14वीं आयत है। And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. पर उस स्त्री को बड़े औकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक भोजन उसे खिलाया जाए। Turn with me to Psalm 55. आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 55। Now read the scripture carefully. अब वचन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। This is the opening scripture he took when he was preaching on the wings of a snow white dove. ये वो शुरुआती वचन का हिस्सा जो उन्होंने लिया जब वो श्वेत फाख्ता के पंखों पर वाला संदेश प्रचार कर रहे थे। Give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication. हे खुदा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। Attend unto me and hear me, I moan in my complaint and make a noise. मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं
और व्याकुल रहता हूं, because of the voice of the enemy. क्योंकि शत्रु ने कोलाहल किया है। Just 1 minute, please. एक मिनट कृपया। Just a minute. एक मिनट। Because of the voice of the enemy, शत्रु के आवाज से, because of the oppression of the wicked, for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। वे मुझ पे दोष आरोपण करते हैं, मुझ पे दोष लगाते हैं। भाइयों का दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। Amen. अब समझ में आ रहा है आपको? Yes, amen. Amen. My heart is so pained within me, and the terrors of death are fallen upon me. मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। This is the opening scripture he picks in that message. ये वो शुरुआती आयत का हिस्सा है, वचन का हिस्सा जो वो संदेश में उठाते हैं। And I said, oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness. Selah. Amen. Amen. तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे फाख्ता से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। सेला। Escaped into the wilderness. बच के जंगल में निकल गया। Oh, if I had the wings of a dove. काश मेरे पास फाख्ता के पंख होते। Whose prayer is this? किसकी प्रार्थना ये है? This is the prayer of the squeeze. ये प्रार्थना है दबाव के समय की। This is the prayer during the squeeze. ये वो प्रार्थना है जो दबाव के समय में की जा रही है। When the woman is surrounded. जब स्त्री घिर गई है। Oh, if I had wings like a dove. काश मेरे पास पंख होते फाख्ता जैसे। I would fly in the wilderness. मैं उड़ के चले जाती उस जंगल में। And she shall be given to wings of an eagle. और उसे उकाब के बड़े 2 पंख दिए जाएंगे। That she fly in the wilderness. कि वो उड़ के जंगल में चली जाए। Now is 2 and 2 making 4. अब क्या आप 2 और 4 बना रहा है? Amen, amen. Selah means amen. सेला का मतलब है आमीन। Brother Branham says, भाई ब्रह्म ने कहा है, David, a lover of the wilderness, दाऊद जो कि एक जंगल प्रेमी था, when he got distressed. जब वो बहुत ही ज्यादा आप नोटिस करें किस टर्मिनोलॉजी में भाई ब्रैनम बोल रहे हैं. जब वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया, And the people wouldn't believe him. और लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे. ये कौन सा दाऊद है जिसके मैसेज पे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे? Amen, amen. And the enemies had come upon him. और दुश्मन उसके ऊपर आ गए थे. He said, if I had the wings of a dove, वो ये कहता है कि अगर मेरे पास फाख्ता के पंख होते, I would fly out into the wilderness मैं उड़ के चला जाता जंगल में and there remain. और वहीं बना रहता. How many times have I thought that same thing? कितनी दफा मैंने वही चीज सोची है. If I could take my rifle off the wall, कि मैं अपनी अगर वो राइफल को दीवार पे से उतार के ले जाऊं, my camp bag, मेरा जो कैंप का बैग है वो लेके जाऊं, go out in the wilderness और वहां जंगल में चला जाऊं, and never return again. और कभी वापस ना लौटूं. I've asked the Lord, मैंने प्रभु से मांगा है if I can live to see the day. कि अगर मैं जिंदा रह पाऊं उस दिन को देखने के I लिए. don't never want a funeral service. मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी फ्यूनरल की सभा हो. I said, if I can just go out in the woods, कि ऐसा हो कि मैं कहीं जंगल में चला जाऊं, somewhere, कहीं set old blondie against the tree, वहां पर कहीं उस पुरानी ब्लॉन्डी बंदूक को एक पेड़ पे टिका के रख दूं. that's my rifle, excuse me. जो वो मेरी राइफल है, माफ कीजिए मेरे I को. say that on account of my wife sitting there. मैं अपनी पत्नी के कारण से इस बात को कहता हूँ. You know that rifle a brother here gave me years ago? आप जानते हैं वो राइफल जो एक भाई ने मुझे दी थी, राइफल बंदूक. I killed 55 head of game with it. मैंने 55 सिर का मारा है गेम उससे शिकार किया. 55? 55. And you're reading Psalm 55? और आप पढ़ रहे हैं भजन संहिता 55.
Is something making sense? क्या कुछ बात सेंस बना रही है? मतलब बना Without रही है। missing a shot. बिना निशाना चूके हुए। Some of them 700 to 800 yards. कुछ बिल्कुल जो 700-800 गज की दूरी पे थे उतने पे ही मारा। I call it blondie because my wife's a brunette. मैं उसको ब्लॉन्डी कहता हूँ क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो ब्रूनेट है, यानी उसके काले से बाल हैं उसके काले से बाल हैं। सामने. So she said, दोनों ने कहा, I think more of the rifle than I do of her. तो वो मेरी पत्नी कहती है कि मैं ज्यादा उस राइफल के बारे में सोचता हूँ बनिस्बत उसके, But सोचता हूँ बनिस्बत उसके, परंतु so I like to set it against a tree मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एक पेड़ पे टिका दूं and say, Lord, और मैं कहूँ प्रभु let Joseph find it someday. ऐसा हो कि जोसेफ को मिले किसी दिन ये। I like to take the wings of a dove and fly away. मैं फाख्ता गए पंख लेके जाना चाहता हूँ कि उड़ जाऊं। क्या मतलब है? मैं उड़ना चाहता हूं जैसे हनोक उड़ा. Amen. Amen. But just like one time up in the mountains पर ठीक एक समय वहाँ ऊपर पहाड़ों में and watching an eagle और एक उकाब को देखते हुए and seeing him fly away, और देखते हुए कैसे वो उड़ता है, you know my story of it. आप जानते मेरी उसकी कहानी। I said, it's good to be here, Lord. मैं कह रहा था कि प्रभु यहाँ भला है होना। Like Peter said, जैसे पतरस ने कहा we could build 3 tabernacles, कि हम 3 मंडप बनाएंगे, but down at the foot of the mountain, पर ठीक पहाड़ की तलेठी पे the sick and the afflicted are waiting, वो बीमार और जो रोगी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, the lost and dying are waiting. वो खोए हुए और जो मर रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। So let us do what we can तो ऐसा हो कि हम वो करें जो हम कर सकते हैं while it's day. जबकि दिन ही है। And someday और किसी दिन there'll be the wings of a white eagle will come down. He will bear us away. वो उस श्वेत उकाब के पंख नीचे आ जाएंगे और वो हमें उठा के ले जाएगा। Wings of an eagle will come. उकाब के पंख आएंगे, He'll bear the Jews away. वो यहूदियों को उठा के ले जाएगा। Sorry, माफ कीजिए, He will bear us away. वो हमें उठा के लेके जाएगा। Amen. Are you understanding it now? क्या आप ये समझ रहे हैं अब? Amen. So you're not just reading one quote. तो केवल आप एक ही कोट नहीं पढ़ रहे, We are reading all what he said. हम वो सब कुछ पढ़ रहे जो उन्होंने कहा है। Then we are seeing this in the message. तब हम इसको संदेश में देख पाते I हैं। hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। Oh, he's a false preacher. ओ ये तो झूठा ना He preaches Revelation 12, woman is bride. Brother Brown clearly said it's Israel. ओ वो प्रचार करते हैं प्रकाश वाक्य 12 दुल्हन है, पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है इजराइल है। Now I'm showing you from the message. अब मैं आपको इसको संदेश से दिखा रहा हूँ। That's why we preach what he preached. आमेन। इसलिए हम वो प्रचार करते हैं जो उन्होंने प्रचार किया। So you need to read everything, brother. तो आपको पूरी सब कुछ पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। And don't make conclusions just like that. और ऐसा ना कीजिए कि पहले से निष्कर्ष निकाल लें So यूं ही। you see, he says, someday तो उन्होंने कहा कि किसी दिन the wings of a white eagle would come. एक श्वेत उकाब के पंख आएंगे। The white eagle which he's referring to later in the message, he explained was written in white eagle. जिस श्वेत उकाब की बात वो बोल रहे हैं वो उनका संकेत उसकी ओर है जिसको वो आगे संदेश में समझाएंगे, जहां लिखा था उस चट्टान पे, उस पत्थर पे श्वेत उकाब, व्हाइट ईगल। And then he said, और तब उन्होंने कहा a message is coming forth. एक संदेश आ रहा है। What are the wings of an eagle? उकाब के पंख क्या है? An anointing is coming. एक अभिषेक आ रहा है, A rapturing faith is coming, एक उड़ाने वाला विश्वास आ रहा है which will pick this bride. जो दुल्हन को उठाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। I'll give you one more quote. मैं आपको एक और कोट दूंगा। To understand this, sit down please. इसको समझने के लिए बैठिए कृपया। This Gentile bride ये अन्य जाति दुल्हन, has 2 parts. इसमें 2 हिस्से हैं। One that's in the graves, एक जो कब्र में है, who are sleeping, जो सो रहे हैं, and the living part, और जीवता हिस्सा which will be changed. जो बदल जाएगा। And you know what Brother Branham said in the message? और आप जानते भाई हमने क्या कहा संदेश में? It's like the 2 wings of a bird. ये मानो 2 पंख हैं एक चिड़िया के। Did he say that in the true Easter seal? क्या उन्होंने इसको बोला सच्ची हिस्से वाली मोहर वाले Did he संदेश? say it in the message, the rising of the sun? क्या उन्होंने इसको बोला वो सूर्योदय का समय है? When Christ was transfigured, here was Moses, here was Elijah. जब मसीह रूपांतरित हुए, यहाँ पर थे मूसा, यहाँ पर थे एलिया। Moses represented the resurrected saints. मूसा दर्शाता है पुनरुत्थानित संतों को। Oh, I'm feeling very spiritual now. ओ मैं बहुत आत्मिक महसूस कर रहा हूँ इस And वक्त। here is Elijah यहाँ एलिया है representing raptured saints. जो दर्शाता है रैप्चर
अभिषेक किए हुए संतों को, who never tasted death, जिन्होंने मृत्यु कभी नहीं चखा, like the two wings of a bird, दो पंख के समान जो कि एक चिड़िया के होते हैं, by which she flies and balances itself. जिसके द्वारा वो उड़ती है और अपना संतुलन बना के रखती है हवा So में। now you know when those two wings come, तो आप जानते हैं जब वो दो पंख आएंगे, it will quicken the dead. ये जागृत करेंगे मृतकों को। On one hand, it will open the graves, एक तरफ वो कब्रों को खोलेंगे and Los Angeles will go under the ocean, और लॉस एंजलिस समुद्र की तलहटी में जाएगा, and the other wing will quicken the living. और जो दूसरा पंख है वो जागृत को जागृत कर, जो जीवित है उन्हें जागृत करेगा, And they together will join और वे दोनों इकट्ठा एक साथ होंगे as the body of Christ मसीह की देह के रूप में, to be raptured ताकि उनका रैप्चर हो in जाए the hour उस घड़ी में when the dragon sputs water. जब जो अजगर है वो पानी की नदी बहाता है After this woman, इस स्त्री के ऊपर, but earth will open her mouth. परंतु पृथ्वी अपने मुंह को खोल देगी, Earthquakes will help her. भूचाल इसकी मदद करेंगे। So at least women should not fear earthquakes. तो बेशक मैं कहूँ कम से कम स्त्री को डरना नहीं चाहिए भूचालों से, Earthquakes are to help her. भूचाल इसकी मदद करने के लिए When the है। woman says, जब स्त्री कहेगी one blow of God, एक खुदा का ब्लो, and these mountains are wiped out. और ये तमाम पहाड़ सफा हो जाएंगे। Why? क्यों? It's a prophecy. ये एक नबूवत है। Earthquakes help this woman. भूचाल इस स्त्री की मदद करते हैं। Yes. जी हाँ, I think you're understanding what we are preaching. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे जो कि हम प्रचार कर रहे हैं। The where and what with us today. वो आमेन, वो कहाँ और क्या जो हमारे साथ हुआ। I believe if Brother Branham was with us in this meeting, he would talk about Chamoli. Amen. He would talk about this light. He would talk about these things. I know it. I know it. आमेन। मैं जानता हूं अगर भाई ब्रह्म हमारे साथ इस मीटिंग में होते तो वो बात करेंगे चमोली के बारे में, वो इस रोशनी के बारे में बात करेंगे, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं जानता हूं इस बात को ऐसा ही करेंगे वो। उनके देवता का घर बह गया। आई समझ में आपके? अब इस साल ऋषिकेश में क्या हुआ? न्यूज नहीं आई, यहां तक नहीं पहुंची। हजारों कावड़ी गए, विलीन हो गए गंगा के पानी में, खत्म, लाशें भी नहीं मिली। ये हो रहा है आज की तारीख। प्रगति का कहर, ये प्रकृति का कहर एक छोटा रूप है प्रकाशित 12 का जो आने वाला है। दिस अर्थ विल हेल्प हर, ये पृथ्वी उनकी मदद करेगा, because that same earth was waiting for such manifested sons, क्योंकि वही पृथ्वी इंतजार कर रही थी ऐसे प्रगतियों के लिए। and that same earth will help that church और वही पृथ्वी कलीसिया की मदद भी by करेगी opening her mouth. अपने मुंह को खोलने के द्वारा। I hope you're understanding it, brother. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरे भाई। Oh, praise the Lord. ओ खुदा की तारीफ हो। This woman going up, ये स्त्री का ऊपर जाना, and now compare it with the Jewish part. और अब इसका तुलना करके देखिए यहूदी वाले हिस्से से। How will the Jews escape? कैसे यहूदी बच निकलेंगे? Earthquake, because he's 1 foot. Sorry, I said it. He puts his 2 foot on Mount of Olives. वो अपने 2 पैरों को जैतून नाम पहाड़ पे रखता है। And the same one who put his 2 feet on Mount of Olives in this age put 1 foot on land and 1 on sea. आमेन। और वही जिसने अपने दोनों पैरों को रख रहा है जैतून नाम पर्वत पे, उसी ने इस युग में एक पैर को पृथ्वी पे और एक पैर को समुद्र पे रखा। और नाप दिया उतना जमीन का हिस्सा आमेन, जो पानी में जा रहा है। आमेन। लेकिन ये मदद करेगा किसी स्त्री की, आमेन, हालेलुया, कि जो पानी फेंक रहे थे अब वो उधर मुड़ के देखें, अपना पानी तो बचाओ, ताकि अटेंशन स्त्री से हटे। और जब ये अटेंशन हटाएगा इधर मैं स्त्री को उड़ा के ले जाऊंगा। आमेन, आमेन। So now, तो अब according to prophecy, नबूवत के अनुसार 2 wings are waiting for that hour of squeeze. 2 पंख इंतजार कर रहे हैं उस सताव की घड़ी के लिए, दबाव की घड़ी के लिए। When those 2 wings arrive, जब वो 2 पंख आएंगे, it's an anointing striking the real church. ये एक अभिषेक है जो सच्ची कलीसिया पे आता है। Now that is a ride. अब वो है एक सवारी। आमेन। If you understand it in the real sense of the quotes which the prophet said. अगर आप उसको समझें उस वास्तविक मायने में जो कि नबी ने कहा है उन बातों को। After this, इसके बाद it's uncharted territory. I don't want to go. ये एक ऐसा इलाका है, क्षेत्र है जिस पे कोई नहीं गया, तो मैं वहां नहीं जाना चाहता। I'll stop here for that part. उस हिस्से के लिए मैं यहाँ रुकूंगा। But I'll come back to chapter 12.